Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the latest episode of Radical Measures podcast. We have a new guest. As promised, every episode we try to get interesting people on this particular podcast. platform. I was going to call it platform because I feel like we own a platform now. Yes. And he's a very funny comedian. Okay. His name is Chirag Panjwani. You see this fellow right here. I met him, I think, 2 years ago. Around 2 years ago. Fleetingly. And I asked myself, who the fuck is this guy who's getting spots, dude? That was my first reaction. This was 2019. 2009, a little bit earlier, yeah, around that time, yeah. And I was like, because I had never seen you, and I had that experience with 2-3 other people who are unfunny as fuck. So then your brain just switches to every person now. 'Cause that's how your ego is, like mine is. I don't know why I'm telling your. But nonetheless, today's guest, he's a very funny comedian. His Instagram ID in Ichhadari Nag, you'll see over here. We'll plug it. We'll mention it in the description as well. Do follow him. He has shared a lot of his work on YouTube. Recently, you have shared another video as well, right? Yes, recently मतलब 20-25 दिन. Oh, I like how you say latest episode now ताकि तुम कुछ भी swap कर सको. Number नहीं बोलता ना तो अभी episode है. नहीं, बिल्कुल नहीं. See, the numbers will always tell the truth. Okay, that's why you stay away from numbers. कि हमने एक episode पूरा ही उड़ा दिया कि हमने कुछ बहुत problematic बोल दिया. This we will release in some other dimension, not this one. But no, basically, it is for that. Because this is a very tight run canoe trying to be a ship. Yeah. That is what this whole production thing is. I mean, I usually don't point it out, but we have dumbbells helping us instead of sandbags. Dumbbells which have never been used for working out are now a part of our equipment. जो भी चीज़ पहले वीडियो पे देखो ना तो मेरे को हमेशा वो होता है कि अब मैं जब इसके सेट या कहीं पे जाऊंगा तो मेरे को इसकी गंदगी भी दिखेगी कि किसने क्या छुपा के ये जो फैंसी सा सेटअप कर रखा है सही एंगल्स में. सब कुछ अच्छा सिर्फ एक ही एंगल में देखो. 360 डिग्री का रहेगा तो पता चलेगा. कैमरा का सीन वो लगता है मुझे मालूम है, लाइक वेयरएवर अ लेंस इज पॉइंटेड एट ना, दैट इज वेयर यू फील कि भाई ये फ्रेम में तो चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए. ठीक है, मुझे जैसे दिखना है, जैसे दिखाना है वैसे दिखना चाहिए. दैट इज व्हाट अ फ्रेम इज लाइक. एंड तू सेट का बराबर बोला है, लाइक व्हेनेवर यू लुक एट अ मूवी set, everybody is just so amazed कि आप जब जाते हो मूवी सेट पे, sometimes you see ना first time bystander, like यही है, इतना ही है बस, as if they expect कि through movie the world is fixed, everything has changed, this is it now. Like I remember there was a time when some friends college में, तभी college या school में, हाँ school में था ना, शाहरुख खान की मूवी कौन सी, कल होना. अरे कुछ डिस्क्राइब कर मूवी के बारे में तो हम गेस करें. the college मैं हूं ना, everything is college. हाँ मैं हूं ना का. You almost had immediately people going ahead and describing their friendship as those characters का, या फिर दोस्तों, अरे मैं तेरा वो क्या होता लक्ष्मण और मैं ये you correlate yourself to the fictional character. फ्रेंड्स के साथ बहुत होता है कि एक 6 पर्सनालिटी टाइप ही है कि ही इज वेरी चैंडलर, ही इज वेरी, अरे ठीक है भाई, वो तो बहुत खराब लगता है ना कि अरे मतलब इतना कम डिवैल्यू कर लिया मेरा पर्सनालिटी को, लाइक इमीडिएटली डाइसेक्ट करके. इवन दो दे आर वेरी वेल रिटन कैरेक्टर्स, लेकिन ऐसे लगता है कि 6 स्लॉट में तुमने कैसे डाल दिया कि बस ये हॉरोस्कोप में 12 होते. That is more options. Yeah. To be. And the options part of, I think that's what happens with personalities. Some traits become dominant traits now. And if they are not the right traits, फिर तो भाई खत्म. फिर दोस्ती यारी वगैरह, you see those people sometimes, people who socially they have failed at creating only any relationships. Like anything substantial, with anybody. Like सोसाइटी में रहते हैं, बिल्डिंग में सबके साथ बनती नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ खटकता है. वॉचमैन को जाते तो ऐसे ही बैठ, ऐसे थोड़ी बैठता है करके. दिस पर्सन लव्स फ्रिक्शन. ये बंदा खुश नहीं रह सकता. बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चॉइस इज इट, डूड? लाइक
बट जैसे जैसे मैं एज कर रहा हूँ आई एम बिकमिंग I think that is it. मेरे को सोसाइटी में सबसे प्रॉब्लम है, मेरे को इनसे भी प्रॉब्लम है। लगता है ना, हाँ, like- मेरे को अब लोगों की चिढ़ समझ में आने लगी कि ये लोग कहते हैं ना वो बड़ी जल्दी टेम्पर लूज कर जाते हैं। मैं कहा तुम समझ नहीं रहे हो, वो ट्रिगर पॉइंट्स बहुत है, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, बहुत जल्दी कोई भी लूज कर सकता है टेम्पर। क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट्स की लिस्ट बढ़ते जाती है, हाँ, कम नहीं हो रही है। यू आर कैरिंग योर बचपन का ट्रिगर पॉइंट्स इनटू अडल्टहुड आल्सो, प्लस देन यू हैव अडल्टहुड ट्रिगर्स कि अरे मेरा ईगो और उसका इम्पैक्ट अजीब रहता है। मेरा अडल्ट सिनारियो में ईगो हर्ट हुआ, इट विल मेक मी फील समथिंग विथ माय व्हाट आई हैव फ्रॉम माय चाइल्डहुड का थिंग आल्सो। लाइक उसका तो लेना देना ही नहीं है ना, टू टाइम जंप क्यों करा रहा है लाइक विद पेन, व्हाई आर यू मेकिंग टाइम जंप वाया पेन डूड? इट्स द वर्स्ट थिंग टू डू as far as just remembering memories are concerned. You don't need to, but that is what your brain tries to do. Like why is it just trying to find a reference point? Trying to bring more context कि What is this is happening? the reason why I reacted अभी भी, और this is why I reacted like this then, कि मेरे को Yeah. एक इस particular type of disrespect से problem है, इस चक्कर में मैं flip हो जाता हूँ जब भी मेरे को कोई ये करता है। What's your मैं नहीं बता रहा। अरे इतना मस्त सेटअप, इतना लेअप करके ये मस्त तो पे भाई क्या ये आराम बहुत से। ही It's very personal of a जैसे अगर कोई बात करता है ना कि कुछ vulnerabilities के बारे में बात करो, डिस्कस करो, तो आई एम अप फॉर दैट डिस्कशन, बट मैं तुम्हें ये पावर नहीं देने वाला भाई कि तुम कभी भी फिर उसको यूज कर लो। yeah. That is very true. Especially if it's a big pet peeve, then it plays into your life too many times. And then if it is out, now you will have to. Arey हाँ, then it's no. You can't keep it a pet peeve. नहीं, और also at least with comics you can have a fallout with anyone anytime. Yeah. This And is suddenly he's just getting नींबू in front of you because like इसको नींबू पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर तो वो फिर सब में बता देगा कि जैसे सब इमीडिएटली नहीं लड़ाई होते बताते हैं कि वो तो टूर पे चीट करता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मेरे को क्लोज गार्डेड रखनी है, और पेट पीव्स वगैरह भी मैं छुपा के रखने वाला हूँ। yeah. It's better to have pet peeves, yeah. It's better to retain them rather than share them, because then you have the pressure of not having them. But you are still irritated. then it's a moment of like, oh, fuck, now people know my pet peeve. Now I'm feeling this way, and that now there's another lie that I have to tell. And Yeah. then इतना मेरे को affect नहीं कर रहा है। Then you have to play that guy. Also if I just tell you my pet peeve, तो तू होएगा कि ओ इसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं थी, ये इसकी पेट पीव है, तो मैं कुछ भी बोलता तो ये ट्रिगर हो ही जाता। बट अगर मैं कुछ ना बोल के सिर्फ इरिटेट हूँ, तो यू विल इंट्रोस्पेक्ट कि मैंने ऐसा क्या बोला था, आई शुड बिहेव माय सेल्फ लिटिल बेटर, मैं थोड़ा ढंग से रहना चाहिए लोगों के साथ। Stop people's personal growth. हाँ, तो वो लोगों को मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मिले, इसलिए तो मैं रिवील नहीं करना चाहिए बस। But there's a very nice नहीं करो उससे। but there's a very universal thing that people do, a universal habit of when you want to convey that feeling, no, कि भाई मतलब तू क्या कर रहा है अभी, देखो पता है there's a look that goes with the silence, you know, where the person is trying to communicate और तूने eject button दबा दिया है, and you're just looking at क्या किधर जा रहा है तू, ये पटरी पकड़ी तूने क्या। Are you good at hiding that look? मैं नहीं हाइड कर पाता हूँ। अगर मेरे को किसी से प्रॉब्लम है तो immediately दिखने लग जाता है उसको। and it's not nice. People have told me that where I have had like instances once or twice, like a comic has just been like, I know what you're saying and I know I understand, but don't na. Arey yaar, because that is where you feel like being the most key, you know, because I see that dude, you're introducing pain unnecessarily in this process, you know. कि वो बोलने लग जाता है कि आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू। मैं कहता हूँ क्या तेरे को पकड़ लिया ना तूने, मतलब और फिर वो चिढ़ जाते ही नहीं है कि ऐसे वॉशरूम का खुद ढूंढ लेना करके। Anger people carry, dude. It's a thing that, especially in a city. How long have you been in Mumbai for? How long have you lived in Mumbai? पैंडेमिक के चक्कर में इट्स नॉट लाइक अ कंसोलिडेटेड टाइम चंक, Yeah, पर 2019 में आया था, फिर 2020 में वापस गया था, फिर 2021 अक्टूबर से वापस आ गया हूँ। Okay, so शायद 2 साल होने वाले। around 2 years. So you spent like around 2 years in Mumbai, and you have what was the biggest difference in terms of just the vibe of the place, you know? Because I'm always interested to hear the outsider's perspective. But I'll have a bias, dude. I'm from here. I know the place. So मैं अरे इतना क्या है उधर? But what was the? I've shifted a lot of cities in general. Oh, अच्छा, मतलब बचपन में Mumbai. नहीं, पोस्ट
11th 12th और कॉलेज हो, तो मैं यूजुअली गलेबल सा ही रहा हूँ कि सारी ठीक ही लगती हैं सिटीज़, और मैं सारी उन्हीं सिटीज़ में गया हूँ जिन सिटीज़ के बारे में वहाँ के रेजिडेंट्स बहुत ही फॉन्डली बात करते हैं कि और दिल्ली का खाना तो ये है, कोलकाता का तुम नहीं समझ पा रहे हो अगर तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो टाइप का। तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ अच्छा ही होगा, फिर मैं कुछ पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो बॉम्बे भी सब ऐसे ही है कि वेकअप सेट से लेके अभी तक सब बस अच्छी ही बात करते रहते हैं कि वो बारिश आएगी, गर्मी पड़ेगी, ये होएगा। तो मुझे लगता है कि बारिश के बारे में अच्छा बात कर, आई थिंक ठीक है, एंजॉय कर लूँगा मैं भीगना। प्रेशर में आके हाँ, तो मेरे को इन जनरल कोई सिटी के लिए ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं रही है, बट वैसा रहा है कि अब ये सिटी में मेरे फ्रेंड्स कम हैं तो अब मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे को पता नहीं क्या है, यहाँ पे मेरे को स्पॉट्स कम मिल रहे हैं तो यहाँ का स्टैंड अप सीन मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इट हैज़ मोर टू डू विद हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग इन दैट सिटी एज अपोज टू कि बैंगलोर में ऑटो नहीं जाते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, ऐसा टाइप का। तो इन जनरल सिटी से ग्रीवेंसेस मेरे को कम ही नहीं है किसी भी। Because you tend to adapt. I've realized कि even if it's a situation where it might not be going the way you're thinking about it, you adapt no matter what. कि बदल तो जाते ही हैं कि okay, if this is not panning out in this fashion, I'll just change my approach and see. Because there's no point in staying in one particular place. It's tiresome to stay in a place, dude, and not like adapt to a situation. You see people. Everyday problem. Same problem. You're waking up with the same thing, the same calculation that is not balancing itself out. Have you lived in a different city or कुछ उसमें? I had for 2 years of my schooling I was in a military school in Pune. तो तभी पुणे में था मैं, and it was a very different vibe. But more than the city, it was a military school hostel vibe, which was like, भाई ये क्या scene है bro? ये तो मतलब full prison break scenario है, from that to for my masters मैं must hope लेके UK गया था, और 2011 में, और रिसेशन भी 2011 में, वीज़ा चेंजेस भी 2011 में, बट फॉर 2 years आई वाज इन कैम्ब्रिज इन यूके, तो वहाँ पे हॉस्टल पे रहा था। हाँ, तो वही तो मतलब कि तुम्हारा सिटी की तरफ पर्सपेक्टिव इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड पर्सपेक्टिव, कि तुम्हारे अगर वो तू बॉम्बे में मिलिट्री स्कूल में जाता तो भी सिमिलर एक्सपीरियंस हो सकता था। तू यूके कोई और डिफरेंट टाइम पीरियड में जाता है तो अलग एक्सपीरियंस होता है, कुछ वो होता है, तो हाँ वो मुझे नहीं बदलना है। टाइम स्केल विद यूके आई डोंट वांट टू चेंज विद मी, इट विल एंड वेरी पुअरली, वेरी वेरी पुअरली। तो इसलिए मैं मतलब ऐसे नहीं याद रखता हूँ कि जब मैं बैंगलोर में था तो बैंगलोर ट्रीटेड मी वेल, वो ऐसा होता है। अच्छा 2014 से 15 में चिड़चिड़ा था, 2015 से ये मेरा अच्छा फेज निकला था, ये हुआ था वो था। बिकॉज पीपल लुक एट लोकेशंस लाइक दैट, पब्लिक का नाता रिलेशनशिप लोकेशन के साथ वैसा रहता है। दैट इज व्हाई पीपल आर एबल टू सेल पीस ज्योग्राफिकली, पीपल की अरे भाई तू यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूड ये लैटिट्यूड पे पहुंचेगा तो अरे निर्वाणा भाई निर्वाणा। दैट इज हाउ पीपल टॉक, लद्दाख वगैरह जाके सेल्फी देखा पीछे लेके, दैट इज इट। आई हैव नेवर फेल्ट मोर पीसफुल एवर, बट you will not be able to bring that back, and you'll have to come back, so the question is different only, buddy. More importantly, you went there on vacation. There's nothing else around. Half your life was back in your city. तू तो था ही नहीं वहाँ पे, तू basically नहीं था। हाँ, और जैसे तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है किसी एक सिटी के साथ, वो डिफरेंट तुम्हारे लाइफ के फेजेस में चेंज हो सकती हैं। जैसे मेरे को जब मैं वेल्लोर या चेन्नई में था तो मेरा सबसे बड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ऑटो वाला नहीं जाता है ढंग से या मीटर से नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं बाद में जाऊँ जहाँ पे कैब्स हैं, तब ऊबर नहीं था, अगर मैं अभी ऊबर से जाऊँ तो बस मैं ऊबर से ट्रैवल करके लेकिन वो भी नहीं जाते हैं भैंचोद। लेकिन ये बहुत ही सॉल्वेबल प्रॉब्लम है फॉर मी टू हेट चेन्नई या फिर वेल्लोर। People like to do that. They like to make the connection. Switchboard रहता ना वैसा कि you have one bad experience, one place, and you're like, dude, these people suck. कभी नहीं जाने वाला मैं वापस। एक जगह है यार, it's just a city, it's just a place. Having said all of that, चेन्नई तो मैं कभी नहीं जाने वाला। छिड़े मुझे। You studied there? मैं वेल्लोर में पढ़ा था। वेल्लोर में पढ़ा था। इंजीनियरिंग करा था। अच्छा। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि अगर बैटमैन रिलीज हो रही है तो तुम्हें वेल्लोर से चेन्नई जाना पड़ेगा टू सी डार्क नाइट राइजेस। तो इसलिए चेन्नई फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता था। और आई थिंक फिर जब वो MBA के एग्जाम्स वगैरह हो रहे थे कॉलेज फाइनल ईयर में, तो उसके लिए चेन्नई बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना होता था। और
हाँ और 2-3 चीज़ों के लिए और Like the pet peeve. Saw the card and ये वाला है. This is not for public kind of. And the best part about it is when you end up living in different places ना, you sort of get a baseline for people with age. कि हाँ भाई similarities काफी है. Even if you move around a bit, you can see हाँ the same gears are at play. Like you have to understand it though कि भाई ये तेरा इसके साथ जैसा reaction हो रहा है to your experiences. Don't amplify it. Don't forget कि भाई why is it happening to no. Because I always used to find it irritating that people say that somebody has it something way worse than me, and I was like, yeah, the comparison I understand is not like but अभी मत बोल मुझे. You are adding to that grief right now. Yeah, like don't He's like him right now. ये मुझे relatable लग रहा है. Yeah. And the fact that two people are suffering doesn't make it better, no? It's not like if he's having it worse, it is not changing how I am experiencing this at all. Also he is not here with us right now. Yeah. अगर मैं उसको अपने से ज़्यादा aggressively रोता हुआ देख रहा होता तो I think मुझे लगता है कि चलो ठीक है. हाँ. अभी तो मैं ही रो रहा हूँ ना. हाँ. If you can teleport the hungry African kid in front of me, फिर मेरे को लगेगा कि वो Right now वो सिर्फ तुम्हारे imagination में रह रहा है. तो तुम अगर बोल रहे हो मेरा pain imaginary है, तुम्हारा sympathy वाला जो बच्चा है वो भी imaginary है. हाँ. और imagination में तो मेरा पेन बड़ा ही होगा ना यार. Sympathy थोड़ी बड़ी हो सकती है. क्या बात कर रहा तू? Reaction तो करने थे वो हिसाब से. वाह ये first question से यहाँ तक पहुँच गया अभी तक की. Everything ends with pain, dude. हाँ. बॉम्बे में कितने टाइम से से पहुँचा है यहाँ पे. Okay. This is what we like to do on this episode. Okay, not just this, any podcast episode. The best part about having conversations with people is people from the circuit is basically जब मिलते हैं एक दूसरे को तब hardly कुछ time मिलता है. कि you have like 7 minutes here, 4 minutes somewhere else. You are just running, to make time from place to place. And उसमें तू कितना ही क्या बैठ के बात करेगा क्या करेगा. But stand up I feel requires, and it helps if you have more conversations with other people trying to do the same job. But with comics एक बड़ी dangerous territory मैंने experience करी है कि अगर हम दोनों ने कॉन्वर्सेशन में कुछ फनी बोला और फिर इफ़ आई सी यू डूइंग दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑन स्टेज तो उसमें मुझे लगता है इसका हाफ मेरा है. ये आधा मैंने कंट्रीब्यूट करा है. तो आई वुड रादर हैव दोस कॉन्वर्सेशंस विद सिविलियंस एज वी कॉल देम. नॉन कॉमिक के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि अब मैं ये फुल कॉन्वर्सेशन चोरी करके स्टेज पे ले जा सकूँ. क्योंकि तुझे तो पड़ी नहीं है. हाँ तेरे को you don't care about stand-up and you're in a very healthy mental state by not caring about stand-up. Yeah, exactly. And you see that you are the person who is able, मतलब तेरा जो वैल्यू जो करंट से दिखता है ना वो कन्वर्सेशन में उसको पूरा oblivious रहता है आगे वाला. And then there is the other thing when you share that you are a stand-up, and then people keep on telling you ये तो तू करने ही वाला है. हाँ बट ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं करते हैं. नहीं ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स ये acquaintances ही करते हैं कि people who come to know for the first time कि ओ तुम ये बात करने वाले हो, which is also not completely wrong. क्योंकि कई बार मेरे फ्रेंड ऐसी रैंडमली एक आध बार आए हैं शो पे कि मैं अगर क्रिप कर दिया कि गाइस कोई टिकट नहीं ले रहा है सब कुछ इंस्टाग्राम पे, तो वो ऐसे आ जाते हैं कि अरे बेचारे 0 टिकट्स, अच्छा हम जाके चले जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे तुम क्यों आ गए, तुम्हारी तो लाइफ से सब चोरी करके लाया हूँ मैं यहाँ पे यार. वही तो सुनाने वाला हूँ. ये कैसे सुनाऊँ मैं तुमको अभी. और तुम हंसोगे भी नहीं इस पे, मिलेगा अरे इस पे तो हम हंसे थे. बट इस पे मतलब आई फाइंड माई सेल्फ ऑल्सो गेटिंग इरिटेटेड एट कि ओ तुम ये स्टेज पे करोगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ तुम पूरी तरह गलत नहीं हो. ये हो सकता है मैं अभी नहीं करूँगा बट अगर बाद में कुछ अच्छा आइडिया आ गया इस पे, तुम तो अपनी तरफ से हेल्प ही कर रहे हो. बस ये हमने सुन बहुत बार लिया है कि ओह ये स्टेज पे तुम ये करने वाले हो, स्टेज पे वो करने वाले हो. कि कॉमिक्स इन जनरल पता नहीं वियर्ड लगता है कि हम रेपिटेशन से हम क्यों चिढ़ते हैं इतना. कि अगर कोई सेम चीज़, जैसे ये नहीं कहते रहते हैं सारे कॉमिक्स बोलते रहते हैं कि ब्रो जोक सुना करके करते रहते हैं. बट कि मेरे ये सेम स्टेटमेंट मैंने इस महीने में 20 बार सुन लिया है. बट मैंने जो तू भी सेम जोक ही तो 20 बार ही तो सुना ही रहना. तो समझ नहीं आता कि सुनने में रेपिटेशन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमें बोलने में तो नहीं है रेपिटेशन से प्रॉब्लम. आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट यू डोंट सी इट फ्रॉम अ रिमूव्ड ये कि भाई वी आर डूइंग द सेम थिंग. It's very easy, Chirag, to forget that we are guilty of the same thing. It's very easy. Thinking कि नहीं मैं आज नया लिख के लाया हूँ,
एक टैग अलग है आज ये वाला जोक मैं थोड़ा ऐसे आईब्रो उठा के कर रहा हूँ, देखो थोड़ा अगर आज अलग साउंड कर रहा है. हाँ. That is when for an outsider it sounds a bit crazy also, but we tend to analyze bits to that extent as well. Sometimes it's paranoia for a thought कि भाई ये तो कैसे भी करके वर्क कराना है, because I think this has something, and then you try to see is there, how can I, you know, with the words what else which will make the laugh better, bigger in some case. And तो बहुत साल से आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट दिस टू पीपल या अदर कॉमिक्स कि हम ऐसे करते हैं, ये वो करते हैं. बट मुझे लगता है इन जनरल मेरे को स्टैंड अप के बारे में बात करने में ज़्यादा मजा आता है, मेहनत कम करता हूँ मैं क्योंकि ये सब एनालिसिस का डिस्कशन बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, बट उतना फ्रीक्वेंटली बैठ के वो पेपर पे एनालिसिस नहीं करता हूँ. तो इनहेरेंटली हाँ, सब लोग lazy सब लोग नहीं तो सब लोग होते हैं, इसलिए थोड़ा कंफर्ट हो जाता है कि अच्छा सब बाकी भी ऐसे ही करते हैं. लेकिन तो अब वो एनालिसिस की बातें करने में थोड़ा सा मेरे को अब गिल्ट होने लग गया है कि मेहनत करी नहीं है, बातें चोदने निकला टाइप का. ऑनेस्टली मेरे को लगता है जो भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो पूरा ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव ही रहता है. बेस प्रोसेस सबका इंट्यूटिव ही होता है. लाइक बैठ के लिखो और फिर बाद में स्टेज पे करो और फिर देखो क्या हो रहा है. लाइक एनालिसिस जस्ट अस रिपीटिंग कि हाँ मे बी ये प्रोसेस चल गया, मे बी ये प्रोसेस चल गया. We are trying to make sense of it, क्योंकि अगर तू पूरा intuitively गया तो it's a very scary thing. Like मैंने थोड़े बहुत कॉमिक्स के बारे में ऐसा पढ़ा है अब्रॉड स्पेसिफिकली who don't write and they just take themselves on stage. Earthquake बोल के एक कॉमिक है और डॉन रिकल्स भी थे. They used to do it that way. So when you hear that and you see that, you are like, how does this person retain sanity of what he is creating? You know कि भाई ये बराबर है नहीं है क्या है. That is the fear we have ना कि भाई if I keep on going with intuition all the time, I don't know, I'm expecting everything to work But randomly. the jokes that you do enjoy, उसका भले तेरे को वर्डिंग एग्जैक्ट नहीं याद रहेगा, बट वो जोक तेरे दिमाग में रहेगा कि ये बोलना है, ये बोलना है. जो द रीजन व्हाई वी राइट इज कि कुछ कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कभी एक बार चल गए थे. हाँ ये मैं भूल ना जाऊँ, बहुत टाइम से नहीं चले, बट क्या पता रिकॉर्डिंग वाले दिन चल जाए तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा. तो ये है Sticking to that one, that is the weird thing about stand up ना. You'll that one laugh, one time that one laugh was वो बहुत अनोइंग है कि हाँ एक बार ही बहुत हंस गए थे इस पे लोग और फिर उसके बाद 3 महीने से कोई नहीं हंसा है. Recreate ही नहीं कर पा क्या रहे हो. प्रॉब्लम है तुमको? और स्पेशली व्हेन यू ट्राई टू हियर योरसेल्फ अगेन कि वो रिकॉर्डिंग सुन के कि मैंने कितना लाउडली बोला था ये बाकी कंपैरिजन में, क्या एक्सप्रेशन दिया था मैंने, अगर वीडियो पड़ा है मेरे पास और वही सेम मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो तुमने जैसे वो करा था, जबकि उस समय ऑर्गेनिकली हो गया था. और अब तुम मतलब you're not being honest with that. It's just not going there. And I think the audience also catches that very easily कि उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई तो कुछ अपनी उसको उनको ये नहीं पता है कि मैं अपनी ही वापस एक्टिंग कर रहा हूँ कि जैसे मैं पहले था, लेकिन उनको ये समझ में आया था कि ये एक्टिंग कर रहा है, डिसऑनेस्ट है, forced है, ये he's putting something extra, ले मेरे को ये नहीं चाहिए. तो कितना भी चिल्ला ले, कितना भी लंबा पॉज दे दे, हम नहीं हंसेंगे. अब तो मैं ईगो पे आके नहीं हूँ कि तू मेरे से झूठ कैसे बोला. At least tell me a lie properly. Like वो expectation है audience का. Yeah, there is a weird power thing at play, and there is no clear definition of it. Like I've realized it, हर एक में अलग अलग scenario हो जाता है. Like you can never, it's chaotic in a way, and that is the best part of a stand-up room. I don't know if that is the best part. नहीं, but लेकिन I can at least say it is a big part. It is a big part. कि there is too much chaos which is existing which can go off at any time. You know कि मतलब कोई तो धागा एक टूटेगा और फिर ठट ठट डोमिनो इफेक्ट. कई बारी तुम ऐसे बहुत खराब मूड पे चढ़े हो स्टेज पे और कुछ रैंडम मैंने कुछ बीच में किसी ने इंटरप्ट करा, तो यूजुअली अगर कोई हैकल भी नहीं है, वो बस उनको पता नहीं है कि इतना नहीं बात करना होता है या कुछ नहीं बोलना होता है, तो तुमने कुछ ऑफ बोल दिया एंड नाउ यू हैव लॉस्ट द ऑडियंस. चलो भाई ये क्या बोल दिया भाई तूने, इसका तो कुछ था भी नहीं, इतना तो कुछ किया भी नहीं. पहले मैं बहुत ऐसे सोचता रहता था कि अब मैं ये जोक सुनाऊंगा तो वो वापस आ जाएंगे. अगर ऐसा वैसे होता तो मैं बोलता हूँ सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज सॉरी मैं निकल, कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, आप जाना क्या हो रहा है मैं बता नहीं सकता आपको, वो नहीं बता सकता मैं, वरना आपके हाथ में पावर आ जाएगा बहुत. वैसा वाला सीन है. Do you guys have a very strong idea of who you are as comics? But some idea तो रहता ही है ना. मतलब मेरे को अभी ऐसा है कि मेरे को बस ये मालूम है कि अच्छा मैं इस टाइप का कॉमिक नहीं हूँ.
हाँ, for sure. ये I think मालूम है? more इतना about तो है। that. Yeah. I don't think ये we नहीं can मालूम है कि define it हाँ, clearly, जैसे वो but कभी कभार क्वेरीज में नहीं लिखते हैं कि आप कौन सी टाइप की कॉमेडी करते हैं, मुझे डिपेंड करता है, ब्रेकअप चल रहा है तो उसके बारे में कर रहे होंगे, नहीं तो जॉब चल तो डिपेंड करता है आप कौन से फेज में मिल रहे हो मेरे से. you've ever gotten this sort of a thing where आप marriage comedy करते हो, आप ये करते हो, you ever gotten a question like that for a corporate show or something? आई हैव नॉट रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट क्वेरीज. वो यूजुअली ऐसा होता है कि आप गाली देते हो तो नहीं होएगा, क्या आप बिना गाली कर सकते हो? Yeah. मैंने कहा, कर सकता हूँ, मूड ठीक रहा है. आप कुछ ट्रिगर मत करना मेरे को. ये है मेरे pet peeves. गालियों का सीन ही है dude, वो like we have it's a universal indicator of extreme anger. That is what it is, but we take it like in a very weird, उसका weightage को अजीब बना देता है अपन, मतलब ये like we add like maybe other things to it, like gender बोल या फिर ये बोल या फिर बोल तूने ऐसी गाली क्यों दी, like वो वाली क्यों नहीं, like you almost make that choice as to इस पे नहीं, you can't go ahead and give me माँ पे गाली मत दे या फिर इस पे गाली मत दे, but that is not the point at all ना, he's just trying to be angry at that point of time. और trying to be how that person is in real life as well, मतलब when he's off stage, she's off stage. तो बस कि शायद मैं वैसे ही, अब जैसे मैं इन जनरल लाइफ में भी थोड़ा गाली दे के ही बात करता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि स्टेज पे मैं जैसे ऑफ स्टेज रहता हूँ वैसे ही रहूँ. इस चक्कर में आ जाती है गाली. Yeah. But और कोई खास ऐसे स्पेसिफिक इंटेंट नहीं है कि फक यू लिबरल्स या ऐसा कोई और नहीं है भाई, बस मैं क्या करूँ. It means something more. आई एक्नॉलेज कि ये रियल लाइफ में भी नहीं होना चाहिए था. अब वो क्यों है बॉय स्कूल, अब तो पता नहीं कैसे तुम उसको डिकोड करोगे. हाँ हो गया बस, अभी है वो ये हो गया है सर्किट में, ये नहीं वो भी आई थिंक चेंज कर सकते हैं, बट हाँ, but it's too much यार. अभी नहीं कर भाई, अभी बहुत काम है. और प्रायोरिटी में कि अगर कोई ऐसे पॉइंट करता है ना कि तुम गाली देते हो, तुम्हें नहीं लगता ये गलत है, तो ऐसे मुझे लगता है कि दोस्त मेरे को थोड़ा जानो, तुम्हें रियलाइज होगा मेरी पर्सनालिटी में और बहुत चीज़ें गलत हैं और वो पहले फिक्स होने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद हम आएंगे ये 19th पॉइंट पे जिस पे मैं गालियाँ देता गाली हूँ. वगैरह. And more important है, तुम गाली गलत बोल, गाली is generally a symptom of something way worse happening with you. Yeah, Like, you know, you're it is an indicator of something else going horribly wrong around you. You know, पता like नहीं, मेरे साथ तो ऐसे कि आइसक्रीम नहीं है बहन चोद. बहुत गलत है वो. I don't agree. Actually, dude, that ice is cream horrible. is also a symptom. Yeah. Like you need ice cream for some very हाँ, big कि dark reason. है, बट मदर डेयरी की आइसक्रीम रखते हैं बहन चोद. It's reason enough to feel bad, dude. Sometimes, especially when you are in the mood for something, you have created that urge of ki no, this is what I want in this moment. And then if it is not happening, you feel like you're being picked up on. मेरे This साथ ही. Yeah, this is when you are like, universe, come on, yeah. Yeah. Can you please? At least Mother Dairy. Yeah. All I asked was for that. Say no to that also. कई बार क्योंकि तुम्हारा जब बहुत मूड ऑफ हो रहा होता है और तुम्हें वो वॉइड फील हो रहा होता है, हाँ. तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि बहुत टेस्टी खाना होना चाहिए. Correct. हाँ. Yeah. तो अगर वो किसी भी तरीके से फकअप कर दे कि हाँ. पाउडर वाली चीज थोड़ी ना डालते हैं इसमें, Yes, yes. तो वो Like बहुत even bone and boneless वाला. Even that affects. ये कि कोई like, पीस है, fuck यार. नेक पीस में क्या यार. तुम जानते हो हाउ तुमने मेरा कितना नुकसान किया अभी. And that poor guy just like, सर आपने बिरयानी बोला, मैं 15 की जगह 10 में लेके आया. 15 मिनट की जगह 10 मिनट में लेके आया. That doesn't count. ये आई हैव डिस्कस्ड विद दिस विद मासूम आल्सो हाँ. कि कई बारी माइक के बाद जो उसकी विसिनिटी में कचरा मिलता है खाने को, हाँ. तो ऐसा लगता है कि मैं इससे अपना बॉम्बिंग एक्सपीरियंस आई हाँ. विल फॉरगेट इट. Yeah, और yeah, नाउ इट हैज हैपेंड इनफ नंबर ऑफ टाइम्स कि तुम्हें मालूम है जाते टाइम कि हाँ. चिप्स और आइसक्रीम खाने से कुछ मैं नहीं अच्छा होना नहीं है. फील करने वाला, हाँ. बट तब भी तुम उसमें इंडल्ज करते हो. हाँ. आई थिंक उनको सारे वेन्यूज को एक छोटा पैक रखना चाहिए कि एक छोटी सॉल्टी चीज़, एक छोटी स्वीट चीज़, क्योंकि तुम ऐसे ही खाते हो ना, चिप्स खा लिए फिर आइसक्रीम खाएंगे, फिर वापस कुछ सॉल्टी खाया, फिर ये कुछ खाया, तो एक छोटा सा पैक रख लो, एक चिप एक टॉफी का, हाँ. और तुम वो खा के और तुमको opposite जो भी दे तुम्हें देते अपने शुगर के साथ ऐसे करना है वो कर लो, लेकिन तुम्हें खराब ही फील होने वाला है. वो बदलने नहीं हाँ, वाला. जाके पैसे मत बर्बाद करो बाकी खाने पे. Yeah, that is a very that's too much of expectation from your mouth. Yeah. Use it to chew and eat. Don't expect it to. और make वहीं से your तुमने अभी feelings- डिसअपॉइंटमेंट मिली का सोर्स है. वही रहा है कि Yeah. तुमने अभी हाँ. मुंह से कुछ बकवास बोल के आए हो. हाँ. That is why you are trying to fix it. Maybe this has been the source इससे of a bad jokes अच्छे हो experience. जाएंगे. टेम्परेचर चेंज करके देखता हूँ अंदर. हाँ. Maybe then it will flow better.
This is the way I feel. Food, man. Okay, so this was second question. Yeah. I'm surprised you're counting. We did have just 2 questions, right? No, I wanted to ask about his time working for an OTT platform. Oh yeah, but And you were like at the front end of all different pitches that people have. I mean, So I was there in 3 departments actually. हाँ. जब तब सोनी में था. तो first was for a brief period जब वेब सीरीज के पिचेस आते थे. हाँ. okay. तो बट दिस वाज व्हेन वेरी लेस शोज वर कमीशन. गुल्लक आई थिंक सीजन 1 उस टाइम पे निकला था, बट दैट वाज आल्सो नॉट अ पिच. वो रेडी शो था, आया था. तो वो था मैं कुछ 6 महीने के लिए उस डिपार्टमेंट में. देन देयर वाज अ चेंज इन मैनेजमेंट. फिर सोनी लिव का रीब्रांडिंग हुआ था. फिर सारे जो पूरा स्लेट आया था वो आया था. उस टाइम पे वो 1 साल में ब्रांड सॉल्यूशंस में था, जिसमें अगर कोई ऐसे ब्रांड कहता था कि हमें LIC की हमें यूथ को अपील करना है, LIC कैसे हम यूथ को कैसे वो करें. तुम कहते थे आप ये इंडियाज़ बेस्ट डांसर में एक गाना करा लो, और फिर वो डांसर्स हमने ले ली LIC का कुछ बकवास सा डांस कर रहे हैं. वो ब्रांड खुश होता था कि ओ आई थिंक अब जवान लोग खरीदेंगे यहाँ पॉलिसी. तो वो उस डिपार्टमेंट था मैं 1 साल. और फिर कुछ लास्ट के पीरियड में मैं कंटेंट एक्विजिशन में था, जिसमें आई थिंक सोनी लिव रीजनली एक्सपैंड कर रहा था. तो पिचेस वो रेडी फिल्म्स वगैरह लेते थे और उसको एवेल्यूएट करते थे क्या ये प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं. तो ये 3 डिपार्टमेंट्स काम. How have you? How was it just looking at different kinds of content that is out there, and how did it shape your opinion of like, oh, where are we entertainment wise? एक तो आई realized कि stand up is way better than all of this because of the turnaround time. क्योंकि until you start working in a department, you don't really realize the amount of effort and time that goes into just commissioning a web series, let alone writing and shooting it. कि वो एक पिच लेके आया है, वो 1 घंटे में आज सुना के हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि क्या ये हम लोग कमीशन मतलब एटलीस्ट डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे. और वो इंसान ने 2-3 साल बैठ के लिखा है उसको. तो थोड़े से रिस्पेक्टफुल होना स्टार्ट कर जाते हो. जैसे अभी मेरे को कोई भी पहले छूतिया मूवी बनाई, क्या छूतिया आप बनाते हैं आजकल ये सब कुछ. तो वो सब चीज़ें बोलना बंद कर दिया मैंने पहले कंपैरिजन. कुछ चीज़ें तो सही लिख कर रखे, क्या करो उसको. हाँ, तो उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट तुम्हारे को बढ़ जाती है कि बहुत टाइम और एफर्ट जाता है इसमें. और जो तुम इमीडिएटली ऐसे कॉमिक्स में देखा है बहुत ऐसे सोचते हैं कि एक वेब सीरीज भी लिख देंगे साइड में. तुम रियलाइज़ नहीं करते हो कि कितने फैक्टर्स उसमें प्ले करते हैं. कि अगर वो कमीशन हो रही है तो जो पूरी टीम ने हाँ बोल दिया, लेकिन जो एक ऊपर बंदा बैठा है अगर उसके टेस्ट से अलाइन नहीं हो रही तो हो सकता है वो 6 महीने के डिस्कशन के बाद वो प्रोजेक्ट किल हो जाएगा. तो ये तुम्हारा जो तुम इतना कैजुअली बैकअप प्लान रखे हो ना कि वेब सीरीज लिख लेंगे, भाई इतना इजी नहीं है वो भाई. very difficult. It's very demanding because it's just especially if you are doing jokes also, भाई turnaround time you can't compare also यार. कि I have a thought, जाके try कर लिया, funny है बस, I'm happy. चल immediately currency it's high. और जो तुम्हारा जैसे हम कहते हैं ना कि स्टैंड अप में इस थॉट की क्या वैल्यू है. थॉट पहली बार कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पोटेंशियल इसमें रिकॉग्नाइज करना ईजियर है. क्योंकि अगर आज मेरा थॉट भले अच्छा है तो मैं 1 महीने में दिख जाएगा कि ये थॉट को तो मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन उसमें सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के पोटेंशियल रियलाइज करना, फिर अच्छा हम इस प्रोडक्शन हाउस को देंगे, ये प्रोडक्शन हाउस यूजुअली सारे अच्छे थॉट्स का खराब वेब सीरीज ही बनाती है, तो इसका क्या करना है. उसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, बहुत चीज़ें फैक्टर करती हैं उसमें कि ये कैसा बनेगा, क्या बनेगा. और जो अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं, तो वेब सीरीज जो सक्सेसफुली प्रोडक्शन साइड से भी मैनेज करते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट स्किल, जिसमें बहुत सारा एक्स्ट्रापोलेटिंग लगता है. कि ये चलेगा नहीं चलेगा, ये चल सकता है नहीं चल सकता है, ये थॉट अभी ऐसे पेपर पे अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तुम्हें पिच के तरह अच्छा लग रहा है, बट जब ये शूट होके आएगा तब किसी को कोई तब इंटरेस्टेड नहीं रहेगा इसे देखने में. तो वेरी वेरी डिफरेंट स्किल, जिसके लिए तुम्हें एकदम कंटेंट वो लोग ऐसे सब्जियों की तरह खरीदते हैं कि रोज इतना सारा कंटेंट आ रहा है, हमने इतना कमीशन होता है, तो हमें बहुत इन डेप्थ नॉलेज है. जो जैसे सब मीडिया में सब 20 साल से कम तो कोई काम ही नहीं करता ना, हम 20 साल से हैं इंडस्ट्री में. तो वो जो जेन्युइनली बहुत साल से होते हैं उनको बहुत इन डेप्थ नॉलेज आ जाती है कि क्या चीज़ चलेगी क्या नहीं चलेगी. तो वो मतलब मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में वो स्किल नहीं डेवलप कर सकता मैं, लेकिन वो उसके लिए अप्रिसिएशन तो डेवलप कर सकता हूँ कि भाई
इतना कुछ सोच वगैरह करके बजटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है एंड यू अंडरस्टैंड इट्स टू बिग ऑफ अ थिंग व्हेन यू रियलाइज प्रोडक्शन हाउस का भी व्हाट लेवल्स ऑफ okays does it have to get a particular project and then you see how many other projects they are working on so it's just a massive machinery trying to create entertainment consistently and the whole point is just get entertained but I'll tell you stories everything you know love hai kya tumhare paas kuch aisa like you know that is how like है ना बेस्ट फ्रेंड का लव का ही ट्रैक है सर बेस्ट फ्रेंड ऐसा Public thing is they're like there's a crime का thing going on everybody's into true crime में कुछ है तो बता ऐसा it's always like yeah we have this one gap to fill now yeah वो वाला चीज है कि यार ये जॉनर में हमारे पास 3 आ गए अब ये दूसरा जॉनर दे दो yeah that is a very different angle of looking at a blackboard कि और तभी अगर तेरे को उनका एंगल एक बार अगर देख के पता चल गया ना then you realize that is where all communication is coming from you get it कि हाँ भाई ये तेरे जैसा मतलब फिल्म ऐसी बनाऊंगा जो नो नहीं हाँ और जैसे तुम पहले पॉडकास्ट सुनते रहते हो तो हम तो जब स्टैंड अप कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ आर्ट फॉर्म परस्यू कर रहे होते हो तो तुम सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से परसीव करते हो कि ये प्रोडक्शन हाउस ने जस्टिस लीग में क्यों इंटरफेयर करा हाँ वो किसी के विजन के साथ क्यों मेडल कर रहे हैं और फिर तुम अगले दिन जाके तुम खुद मेडल कर रहे हो कि अरे ये नहीं चलेगा सर ये नहीं ले सकते तो तुम्हें ऐसा लगता है कि कौन हूँ मैं तो वो बड़ा ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट रहता था जैसे उस टाइम पे अगर कोई शो डिसाइड हो रहा है कि ये शो कमीशन कर दिया है लेकिन फिर उसके लिए फेसेस वो देख रहे हैं कि क्या ये स्केलेबल बन पाएगा अगर हम इसमें मनोज वाजपेयी को कास्ट कर दें तो शायद बेटर हो जाएगा ये वाला एक्टर अच्छा है लेकिन कौन देखेगा अगर ये प्रोटैगनिस्ट होएगा तो तुम ऐसे रिजेक्ट कर रहे हो मतलब और वो मैं नहीं कर रहा होता था मैं बस उस जगह पे होता था जहाँ पे हो रहे होते थे कि मैंने इसका काम हटा दिया तो तुम ऐसे देख रहे हो कि उसको हटा रहे हैं कर रहे हैं और शाम को तुम माइक जा रहे हो और तो जब माइक्स में हम नहीं पूछते कि कौन यार जेन्युइनली सिर्फ कॉमेडी के लिए आया है ना कि एक नोन फेस ओ गुड मैम आप इन जनरल कॉमेडी के फैन कोई क्यों कर रैंडम कॉमेडी का genuine comedy audience हाँ जेन्युइन कॉमेडी ऑडियंस that is what hosts look out for जो एक स्पेसिफिक कॉमिक के लिए आ रहा है उस इंसान का तो और ज्यादा इवॉल्व टेस्ट है क्योंकि दैट पर्सन हैज फिगर्ड आउट कि अच्छा मेरे को ये टाइप की कॉमेडी पसंद है ये जना कंसिस्टेंटली इस टाइप की कॉमेडी करता है तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इसके जोक से अलाइन करता है तो वो कैसे जेन्युइन कॉमेडी ऑडियंस नहीं है भाई तुम ऑडियंस में भी इंडी ढूंढ रहे हो हाँ कि मैं कोई भी म्यूजिक सुन लेता हूँ मैं तो तुम्हें पता है नहीं तुम कौन सा म्यूजिक बजाते हो और तुम्हें चाहिए एक ऑडियंस की कोई भी म्यूजिक सुन ले क्या हुआ it's also like you haven't learned anything about yourself then like if you don't have taste which is like coming to I like this मतलब you haven't learned anything about yourself dude you are just going for experiences and imagining maybe this one is mine हाँ तो उसमें फिर usually conclusion होता है कि अच्छा तुम बस lonely हो I think हाँ तुम्हें बस घर नहीं बैठना था अकेले आज तुम आके बैठ गए हो which is also good audience वो लोग भी हंस के जाते हैं लेकिन वैसा होता है कि you can't shit on people who are coming specifically for somebody yeah it doesn't make sense it doesn't make sense फैन है एंड यू एक्सपेक्ट समवन टू कम फॉर यू एट सम डे तो तुम यही तो तुम्हारा एस्पिरेशन है ना कि एक दिन कोई तुम्हारे लिए भी ऐसा आएगा where people find how I am crafting my jokes and my style of approaching is like their thing that is what I want you know that is when the thing will come ki ha okay fine what I'm doing makes sense so if this is happening in front of you तो वो देख लो कि वो जना वो एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज कर रहा है कि अगर आज इस कॉमिक के लिए ऑडियंस आई है तो इज दैट पर्सन गेटिंग अनर्व्ड कि ओ फक मेरे पास बहुत प्रेशर है कैसे परफॉर्म करना है या फिर उससे एक दोस्त की तरह ही बात कर रहे हैं या फिर बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे हैं उनको तो इट्स एन इंटरेस्टिंग डायनामिक टू ऑब्जर्व एज अपोज्ड टू कि ओ तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मेरी बात सुनने का तुम तो आई उसके लिए हो अरे भाई क्या हो that is such a passive aggressive like मुझको ध्यान नहीं दे रहे हैं it's a tantrum you know child throwing a tantrum की मेरे पास ध्यान दे करके and you are only doing 5 minutes कि मतलब अरे 5 मिनट वो सेटल होंगे ये होंगे there is that you have to remember as an opener कि don't take it like that their show is starting it is starting they are settling in no it's fine you are bringing the पिछला 10 shows का insults and whatever you felt to and this also the expectations you are coming with कि आज मेरे को बहुत दिन बाद इतनी सारी ऑडियंस मिला है आज तो किल करना ही है अरे भाई तुम्हारा है ही नहीं शो yeah if you get laughs take it and go that's it don't think कि भाई मैंने आज
किल किया करके बट ये मतलब बोलना इजी है जब उस टाइम पे तुम उस जोन में होते हो. इफ यू आर रिकॉर्डिंग व्हाइल ओपनिंग फॉर समबडी तो फिर देन तुम्हारे मन में तो इट्स ओनली अबाउट यू. अब कि अब कैसे कुछ भी करके आज मेरा रिकॉर्डिंग निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बार रिकॉर्डिंग करने का ट्राई करा, नहीं हो पाता है. इतने दिन बाद मुझे वो मिला है. When you're in the middle of that whole soup, then your brain does not be reasonable. Then you just get angry at strangers and you start railing against them, and they're just like, this is our day out, you know, na? It's a whole different ball game. Recording, I think your everything like changes. You have to record a couple of times, I think, to just make peace with the process of it. क्योंकि स्टार्टिंग में एटलीस्ट मुझे लगता था कि ये प्रोसेस छोटा रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग के साथ छोटा ही रहता है. और फिर हाँ, बिकॉज यू हेयर स्टोरीज कि उसने पहली बार रिकॉर्ड करा, वो तो इतना किल करता था कि उसने वो कर दिया. और यू आल्सो हेयर स्टोरीज उसने 19 बार रिकॉर्ड करा. तो लगता है कि तुम्हें शायद 9 बार करना पड़ेगा अगर मैं हेल्दी मिडल ढूंढ रहा हूँ. क्या है, I've heard like 7 लाख खर्चा किया है उसने. 7 लाख नहीं है ब्रो, क्या बात कर रहा है यार. इतने पैसे अभी निकालने पड़ेंगे एक रिकॉर्डिंग के लिए. 10 मिनट के लिए उसने इतने क्या बात कर रहा है डूड. ये सब नहीं है अपने पास. 7 लाख का बजट नहीं है ब्रो 10 मिनट के लिए. मैंने सोचा ये स्पेशल का बजट होगा. So people have, I mean, then it's like it depends on you also, no? It's your money. Yeah. If you can scale it to that extent for whatsoever reason, scale it. That's the whole reason why you have Bugatti and every other big car and big. Why there is a plane. luxury section of everything. Somebody who's just going to say, make it more comfortable now. Little bit more. Use Egyptian cotton. You know, that is what. I always found it funny, dude. The bed sheets made out of Egyptian cotton are so expensive, and I always end up thinking, is there some level of historical slave? if you pay that amount तो you will also find a difference. Yeah. कि फिर तू ढूंढ ही लेगा कुछ हाँ, difference. it is better. मेरे को ड्रीम्स अच्छा आते हैं इसमें. Yeah. I dream better when it comes to these bed sheets. तो एक बार ही पे कर दे तो फिर जैसे वो सब आईफोन वाले नहीं कहते हैं कि कुछ तो है इंटरफेस. एक बार तुम यूज करने लग जाओ उसका तो feel अच्छा है. can't go back. उसका ecosystem. Apple's ecosystem. Like what ecosystem, dude? Ecosystem is like a rainforest is a ecosystem. But it is true Apple का. कुछ तो है. That is it. We have come out with the final revelation. That Chirag Panjwani is an Apple fanboy. Okay. If you do enjoy his work, go watch him live. He's enjoyable to watch live. He performs at a lot of different venues. Do follow him on Instagram. You'll see his show updates over there. That is the only thing you'll see, by the way. Yeah. कोई और दोस्तों मेरे ओपिनियन आजकल क्या चल कुछ भी नहीं होएगा. It is only please टिकट ले लो guys. Yeah. क्या है ये? It is clearly that he has. और अब तो जब से पहले था ना स्वाइप अप आएगा तभी तुम अब तो every story has a link. Yeah. Nothing is without a show ticket link. हाँ. You're very close to. Just go on his profile. You see him perform close to you. Click on the link. Buy tickets, and he will only go ahead and share jokes. Promise. He will not try to fix your life. He will not try to go ahead and give you Any gyan. Any gyan. Any yeah, gyan. No about gyan. how you're supposed to be as a human being. He realizes he's a comedian. Okay, so please do follow him. Check out his work, and that's it, ladies and gentlemen. Thank you for this. Bye bye. Bye. Take care. Episode. 3 questions. Yeah. 3. बोलना. नहीं 3 questions हुए थे ना. हाँ, 3 questions. Yeah. 3 questions is enough.